किसानों वालों ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸਰ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਔਰ ਕੀ ਕੁਝ ਸੁਨੇਹਾ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਸਿੱਧੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਮੈਂਬਰ ਐਸਕੇਐਮ ਨੌਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ। ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ 8 ਔਰ 9 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬੇਕਸੂਰ ਆਪਾਂ ਫੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਤਾ ਜਾਊਗਾ 16 ਤੱਕ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਐਜ ਇਟ ਇਜ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਕੱਲ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੰਭੂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰੇਲ ਰੋਕਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਸਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਐਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ। ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੰਗਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ C2+50 ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ 2020-21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਡਾ ਵਾ ਜੋ 2021 ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ। ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਕਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ, ਮਾਓਵਾਦੀ ਨੇ, ਕਈ ਕੁਛ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਪੱਧਰ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਸੀਐਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਖੱਟਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਾਪੀ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ। ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦਾ ਉਹੀ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਉਹ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ 3 ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਆਣ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭ ਲੈਣ। ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਆਖੋ ਦਿੱਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਖੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਕੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਦੇਂਗੇ ਆਖਰ ਕਿ ਕੁਝ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਕਿ ਕੁਝ ਮਸਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਖਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਔਰ ਸਿੱਧੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਖਰ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਤਰੀਕ ਸੀਗੀ, 9 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਦਿਨ ਦੇ ਗਿਆ, 10 ਹੋ ਗਈ, ਦੁਬਾਰੇ ਪੀਸੀ ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਈ ਦਿਨ ਲੈ ਲਏ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ 16 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਲਾਸਟ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਮਜਬੂਰਨ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣੀਆਂ ਪੈਣੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਲੇ ਵੀ ਪਿਆ ਤਕਰੀਬਨ, ਹਲੇ 5 ਵਜੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਾਂਗੇ, ਪਰ ਮਜਬੂਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਕੀ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਸਾਡੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਖਰ ਉਹ 3 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉੱਦਾਂ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜਾਂ ਮਨਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਦਾਦਾਗਿਰੀ ਕਹਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ, ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀਗਾ। ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਲਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਦੱਬਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦਾ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੱਬ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਡਰਾ ਦਿਓ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਖੇਤੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਭਿਮਨਿਊ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲਦੇ, ਚਾਹੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਰਾਓ, ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਵੀ ਡਰ ਕੇ ਸਕਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਗੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਰੇਲਾਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਰੋਕਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ? ਰੇਲਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੰਭੂ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉੱਥੇ 12 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। 11 ਵਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉੱਧਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਆਉਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਦਾਦਾਗਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਹੀ ਲੱਗਦਾ ਆਹੀ ਤਰੀਕਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਆ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਤਾਂ ਮਜਬੂਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਆਖਰ ਇੱਕ ਐਸਕੇਐਮ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਸਕੇਐਮ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਬਣਾਏਗੀ ਔਰ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। हरियाणा ਦੀ किस तरह तैयारी है? हरियाणा ਦੇ ਵਿੱਚ सवाल पूछे जा रहे हैं? ये ऐसा है कि चलो ठीक है, उन्होंने भी जिक्र किया होगा। हमारे दोनों मोर्चों ने, संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा, तो बहुत पहले ही इसका ऐलान कर चुके हैं और बाकायदा हरियाणा में भी उसी तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं जैसे पंजाब में पूछे जा रहे हैं। कई गाँवों में तो भाजपा और उनकी सहयोगी पार्टियों की एंट्री भी किसानों ने बैन कर दी है। बड़े बड़े बैनर अपने गाँव की एंट्री पर लगा दिए हैं और जब वो सवालों का जवाब भाजपा वाले नेता नहीं देते तो लोग उनका काले झंडों से विरोध कर रहे हैं। और बहुत सारी वीडियोज़ वो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही हैं और आने वाले समय में अभी हरियाणा में, पंजाब में बड़ी बड़ी यात्राएँ भी दोनों मोर्चों द्वारा करी जाएंगी।
जाएगी और उन यात्राओं के समापन के उस पर बड़ी बड़ी जनसभाएं भी आयोजित करी बीजेपी जाएंगी। के लीडर साफ तौर पे कह रहे हैं कि बीजेपी का विरोध नहीं हो रहा, कह रहे हैं कि जेजेपी का विरोध हो रहा है। अरे मुझे एक बात बताइए, रणजीत चौटाला कौन सी पार्टी के हैं? उनको कितने गाँव में नहीं घुसने दिया? जो इनके मोहनलाल बडोली सोनीपत के लोकसभा प्रत्याशी हैं, उनका कितने गांव में विरोध हुआ, एक बार वो भी बता दें। इसके अलावा अशोक तंवर हैं, वो भी भाजपा के ही होंगे, उनका सिरसा फतेहाबाद में कितने जगह विरोध हुआ? फिर उनको अगर उनका विरोध नहीं हो रहा तो उनको 2-3 हज़ार की पुलिस फोर्स लेके क्यों जाना पड़ रहा है और उसके बावजूद लोग उनको गाँव में नहीं घुसने दे रहे हैं? इनका जो पूर्व मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर जी, वो किसी गांव में मीटिंग ना करके वो जो शहर में जो गार्डन होते हैं वहाँ पे मीटिंग कर रहे हैं, वहाँ पे क्यों कर रहे हैं? वो गाँव में क्यों नहीं जा रहे हैं वो? तो ये सिर्फ कहने की बातें हैं, ग्राउंड पे उनका बहुत विरोध हो रहा है। अब जो सीएम है सैनी, वो जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं किसानों को लेकर, क्या लगता है कि आखिर उनकी मंशा क्या है और इन 3 नौजवानों की रिहाई क्यों नहीं हुई? देखिए, पॉलिसी वही है, एज इट इज़ है, जो पहले मनोहर लाल खट्टर जी के समय थी वही पॉलिसी नायाब सिंह सैनी जी के समय पे है। पॉलिसी बिल्कुल नहीं बदली, सिर्फ चेहरा बदल दिया। इनको ये लगता है कि चेहरा बदलने से लोगों के ऊपर जो ज्यादती हुई है लोग वो भूल जाएंगे, तो ऐसी नहीं गलतफहमी है, लोग उसको बिल्कुल याद कल रखेंगे। से 12 बजे से रेल रोकी जाएगी। तक शंभू बॉर्डर पे रेलवे ट्रैक पे बैठेंगे, कब तक? जब तक उनकी रिहाई नहीं होगी तब तक। ठीक है, ਤੇ ਸਾਫ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਸਾਫ਼ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਉਦ ਤੱਕ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਸਕੇਐਮ ਵੱਲੋਂ ਲਿੱਤੇ ਗਏ। ਔਰ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਭ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਵਾਲ तमाम ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਉਸ ਤੋਂ तमाम ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ 12 ਵਜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ उन 3 नौजवानों की रिहाई कदों होती है। हरियाणा का चुनावी पारा लगातार चढ़ता दिखाई दे रहा है और इसी में ही सारी पार्टियां जो है चुनाव मैदान में है। इस समय हरियाणा के राज्य मंत्री विशंबर सिंह जी हमारे साथ हैं, बातचीत कर लेते हैं। सर, सबसे पहले लोकसभा के इलेक्शन को किस तरह देखते हैं आप? देखिए, हम लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरे 5 साल अपना खाका बना के रखती है। जैसे हम चुनाव जीतते ही हम अगले 5 साल के लिए फिर से चुनाव की तैयारी शुरू कर देते हैं। पिछली बारी की बात की जाए तो पिछली बारी की 10 की 10 लोकसभा सीटें बीजेपी की जोली में आई थी और अब की बार कैसे देखते हैं? अब जज्बा भी अलग हो चुकी है और कहीं ना कहीं ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि बीजेपी के को विरोध का सामना करना पड़ रहा है और किसान लीडर साफ तौर पे कहते हैं कि सिर्फ बीजेपी का विरोध जो है हरियाणा और पंजाब में किया जाए, खासकर हरियाणा पंजाब की बात की जाए। देखिए, अभी कहीं भी मुझे नहीं लगा हरियाणा में बीजेपी का विरोध हुआ हो। हाँ, जजपा का जरूर हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कहीं विरोध नहीं है। मैं भी 4 लोकसभा क्षेत्र में घूम के आया हूँ 3 दिन से लगातार। रोहतक लोकसभा में मैं था, कोसड़ी में था, नठेड़ा गांव में था, रिवाड़ी में था। मैं रोहतक में 2-3 जगह था, मेरा कार्यक्रम था। उसके बाद हिसार भी था। मैंने कहीं विरोध नज़र नहीं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोगों का एक बहुत ही भरपूर योगदान भरा एक उनके अंदर एक भावना जो मैंने देखी, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश को आगे बढ़ा है, उसको देख कर के जनता बड़ी खुश है। और फिर से जो है प्रदेश और देश में हरियाणा भारतीय जनता पार्टी सरकार। हरियाणा में कौन सी पार्टी के साथ अपना मुकाबला समझते हैं आप? हमारा किसी पार्टी के साथ मुकाबला नहीं है। हाँ, मुकाबला है तो विपक्षियों का आपस में दूसरे नंबर पर आने का मुकाबला ज़रूर है। पर विपक्ष को किस तरह देखते हो? अगर खासकर कांग्रेस की बात की जाए तो कहा जाता है कि कांग्रेस का इतिहास है कि कांग्रेस को और कोई पार्टी ख़त्म नहीं करती, कांग्रेस को कांग्रेस ख़त्म करती है। अब क्या लगता है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का हरियाणा में क्या स्टैंड है और इंडिया गठबंधन को किस तरह देखते हो? लगता है कि बीजेपी और इंडिया गठबंधन का मुकाबला होगा? देखिए, कांग्रेस एक डूबता हुआ टाइटैनिक जहाज है और अब की बार मुझे लगता है उनको आज तक अगले सवाल का जवाब मैं ही आपको दे देता हूं, क्योंकि आप अगला सवाल मेरे से कैंडिडेट्स के बारे में पूछना चाहेंगे तो उससे पहले मैं इसमें जोड़ कर आपको बता देता हूं। उसके पास कोई इस तरह की योजना भी नहीं है, नीयत नीति कुछ नहीं है। तो मुझे लगता है 60 साल में जो है कांग्रेस ने इस देश को इतने पीछे ले जाने का काम किया और मात्र 9.5 साल में इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने देश को इतना ऊपर ले जाने का काम किया और जो है 5वें नंबर पर ले जाने का काम किया। तो हम 2047 का जो माननीय नरेंद्र मोदी जी का मिशन है 2047, उसमें हम फिर से एक प्रकार से विश्व गुरु कहलाएंगे और उसी हिसाब से हम चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उसी हिसाब से चल रही है
और हम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर से इस देश को आगे ले जाएंगे। पर घोषणा पत्र को लेकर विरोधियों का कुछ और ही कहना है। साफ तौर पे कहते हैं कि जुमले हैं बीजेपी के। आप क्या उनको जवाब देना चाहते हैं, और साथ के साथ ही क्या लगता है कि आखिर कांग्रेस में और इंडिया अलायंस में क्या कमी है जिस करके वो आगे बढ़ ही नहीं पा रही? देखिए, 2014 में कांग्रेस जुमला बताने लगी थी हमारे संकल्प पत्र को। 2014 में हमने सरकार बनाई, हमने केंद्र में सरकार बनाई, हमने प्रदेश में सरकार बनाई, और फिर से 2019 में फिर से हमने संकल्प पत्र जारी किया। उन्होंने फिर जुमला कहा, हमने फिर से 2019 में केंद्र और प्रदेश में दोनों जगह सरकार बनाई। तो आज 2024 का जो समय है, आज फिर हमने संकल्प पत्र जारी किया है। तो हम आपको इस चैनल के माध्यम से जनता को बताना चाहेंगे, तो जनता जो नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर फिर से एक कमल के फूल पर मोहर लगा करके फिर से भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनाएगी। क्या लगता है कि हरियाणा के लोगों तक क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं, और इस 9.5 साल में 3 हरियाणा के लोगों के लिए काम किए हैं बीजेपी सरकार ने? देखिए, काम बहुत सारे किए हैं, 3 के बहुत सारे। हम एक आपको गिनाने लगे अलग अलग से कितनी योजनाएं माननीय मनोहर लाल जी ने बनाई है। सबसे बड़ी उपलब्धि, प्रदेश में जो बेरोजगार युवाओं को बिना पर्ची और खर्ची के नौकरियां दी हैं, ये सबसे बड़ा एक मुद्दा हमारी सरकार का रहेगा। दूसरा, बिना भेदभाव के हमने सभी 90 के 90 विधानसभाओं में विकास कार्य किए हैं, ये भी हमारा मुद्दा रहेगा। और एक पारदर्शी शासन स्थापित करना माननीय मनोहर लाल जी द्वारा, वो भी हमारा रहेगा। बाकी हमने जब 2014 में हम जब आए, माननीय मनोहर लाल जी ने शपथ ली हरियाणा एक, हरियाणवी एक को लेकर के, जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर के, हमने पूरे 9 साल में माननीय मनोहर लाल जी ने इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम। अरविंद केजरीवाल की कार्रवाई को लेकर क्या कहना चाहते हैं, और वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि वो जेल से बैठक करेंगे अपने लीडर्स के साथ? ना, देखिए, जेल तो जेल होता है। अगर बैठक करनी होती तो वो जेल में क्यों जाते, बाहर ही बैठक करते ना। हाँ, इतना है, उसके कुछ लोग उससे मिलने जरूर जाएंगे, उसको आप बैठक समझिए या कुछ समझिए। तो जेल से सरकार थोड़ी चलती है। जेल में गया है, उसने कुछ किया होगा तभी तो जेल में गया। जाने कोई करने वाला जाएगा। शराब पॉलिसी बनाई है, शराब पॉलिसी में अपने नज़दीकियों को उसको फ़ायदा मिला है, मंत्रियों को फ़ायदा पहुँचा, उसके नेताओं को फ़ायदा मिला है, उस नाते से जेल में गया है। एक तरफ बीजेपी दावा कर रही है और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस भी दावा कर रहा है, कह रहा है कि 10 की 10 सीटें हम लेकर जाएंगे। ये जनता तय करेगी ना, मैंने बताया ना, जनता तय करेगी। जनता जनार्दन है, क्योंकि लोकतंत्र में राजा ढोल से पैदा होता है, पेट से पैदा नहीं होता। 400 पार का नारा तो बीजेपी ने दिया, और क्या लगता है कि 400 पार आप ग्राउंड लेवल पे जा रहे हैं और हरियाणा में भी घूम रहे हैं, क्या लगता है कि इस बार फिर से मोदी सरकार और हमारा आंकड़ा होगा 400 पार। विरोधियों को कुछ कहना चाहेंगे? ना, विरोधियों को तो मैं ये कहूँगा, आज नवरात्रे लगे हैं, माँ भगवती उनकी बुद्धि को ठीक करे और भगवान राम उनकी बुद्धि को सद्बुद्धि दे। और आखिरी सवाल है मेरा, जो भी महकमे आपके पास है उसकी विकास कार्य को लेकर आपका रोड मैप क्या है? देखिए, मेरे पास सामाजिक न्याय मंत्रालय एंड प्रिंटिंग प्रेस है, और मैंने दोनों पर अधिकारियों से बैठक करके वो पूरा मैंने ब्यौरा मांगा है उससे। उनमें स्कीमों के बारे में मैंने पूछा है, प्रिंटिंग प्रेस के बारे में मैंने पूछा है, और जब हमारे पास अलग अलग से पूरी स्कीम आ जाएंगी, सब चार्ट आ जाएगा, तो हम अधिकारियों के साथ बैठ करके उसको भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। और हरियाणा के राज्य मंत्री हमारे साथ थे और तमाम बातचीत की है। सारी बातचीत को लेकर आप क्या सोचते हैं, मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।